Okay, so we'll continue our discussion on circle, basically mensuration of circle, and this is our first question. Last day we discussed what is the circumference and perimeter of a circle and also area. So we have this first question: find the length of diameter of a circle whose circumference is 44 centimeter. So circumference is given, and they have asked us to find the diameter. So see, we know that circumference can be expressed in terms of radius. So suppose r is the radius of circle, small r is the radius of circle, then we know if we have we know the value of r, then we can determine diameter. Diameter is double of radius. Okay, and circumference has a direct relation with radius. What is circumference? Circumference is 2 pi r. We discussed it in the previous session. So value of circumference is given, how much? 44 is equals to 2 pi r. So from here we can determine the value of r. What will be the value of r? R will be 44 divided by 2 pi, and see, whenever in the question it is not mentioned, then you can use pi equals to 22 by 7. Sometimes in the question you will see that it is mentioned that take pi equals to 3.14. So when it is mentioned to take pi as 3.14, then we'll take 3.14. Otherwise, in all other cases, we'll use 22 by 7. Okay, that will basically make your calculation simple. Here if I write 3.14, the calculation will be more complicated. So 2 times 22 by 7. तो देखो ये by 7 जो है क्या हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में चल जाएगा. अगर कुछ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो वो तो न्यूमिनेटर में चल जाएगा ना. सो देखो 22 से 2 टाइम्स में 2 and 2 gets cancelled, so we are getting r as 7 centimeter. Okay, I have not written the unit here, but I am writing it here. So the radius is 7 centimeter, but we have to determine the diameter. So what will be the diameter? Diameter will be 2r, 2 times radius, means 2 times 7 centimeter, which is 14 centimeter. So a circle whose circumference is 44 centimeter will have a diameter of 14 centimeter and a radius of 7 centimeter. Okay, so I hope this is clear to everyone. Now suppose if in this question only they also tell you to find the area of the circle, मतलब addition करे question में कि also find the area of circle. So will that make this question difficult? No, it will still remain easy, because we directly know the formula of area. What is area of a circle? Pi r square will be pi r square. So now you write the values and determine the area. R is 7, so 7 times 7 centimeter square. See, don't forget to write the unit and write the proper unit. So we are getting 154 centimeter square. This is the area of a circle whose radius is 7 centimeter and circumference is 44 centimeter. Okay, so it's very simple, it's not that difficult. Okay, so having solved this question, now let us discuss something about semicircle. In the previous session you might have seen I made semicircle. Semicircle means half a circle. So how to determine the perimeter, circumference and area of a semicircle? See, first let us draw a semicircle. It looks some kind of this. Okay, where this is the center, ये रेडियस है, ये भी r के बराबर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक कर लें. ठीक है, तो देखो अगर हम लोग सर्कल का बात करें, मैं यहाँ पे पहले सर्कल के लिए लिख लेता हूँ. अगर हम लोग सर्कल का बात करते हैं तो इसका सर्कमफेरेंस कितना आ रहा था? सर्कमफेरेंस मतलब वो जो कर्व्ड आर्क जो बन रहा है वो कितना आ रहा था? 2 पाई आर.
तो अगर पूरा कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आधा सर्कल जो है ये कितना होगा, उसका हाफ, 2 पाई आर का हाफ, 2 पाई आर का हाफ करेंगे मतलब पाई आर. सो वी कैन से दैट दिस लेंथ इज पाई आर. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस का बात करें तो इट विल बी पाई आर. सर्कमफेरेंस या फिर तुम बोल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क, यू कैन ऑल्सो राइट दैट विल बी पाई आर. नाउ सी इन सर्कल द पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस बोथ वेयर सेम. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो सर्कमफेरेंस है वही तो पेरीमीटर भी है, वही बाउंड्री भी है. बट इन केस ऑफ सेमी सर्कल देखो सर्कमफेरेंस इतना ही है, ये जो कर्व्ड वाला पोर्शन है वी आर कॉलिंग दैट ओनली एज सर्कमफेरेंस. ये कर्व्ड वाला पोर्शन ओनली दिस इज सर्कमफेरेंस. लेकिन पेरीमीटर मतलब क्या होता है, लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द आउटर एजेस. तो ये कर्व्ड वाला तो ठीक है, मिल गया कि पाई आर होगा, ये तो पता चल गया. देखो ये और ये बच गया ना, ये दोनों तो रह गया ना बाकी, ठीक है. सो विल हैव टू ऐड देम ऑल्सो. So here the perimeter will not be pi r, it will not be simply pi r. Here the perimeter will be circumference plus, I am highlighting using different color, this length, see this length. And what is this length? It is 2 times r. देखो यहाँ से यहाँ तक r और फिर इधर से लेफ्ट r, मतलब 2 times r. So pi r plus 2r, that is what the perimeter will be. And what will be the area? So अच्छा, you can also write it as, you can take r common and ऐसे लिख सकते हैं यार, pi plus 2 multiply 2r, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. पर हो सकता है कि ये रिलेशन याद नहीं रहे. रिमेंबर द कंसेप्ट कि क्या होता है, सर्कमफेरेंस पहले फाइंड कर लो या लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लो, कितना होगा सर्कल के सर्कमफेरेंस का हाफ मतलब पाई आर. और फिर ये 2 ठो रेडियस, एक ठो इधर से इधर और एक ठो सेंटर से इधर. सो इसीलिए 2r ऐड हो गया उसमें. नेक्स्ट इज एरिया. देखो एरिया का मतलब क्या होता है कि कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना ये स्क्रीन का कितना पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया, दैट इज एरिया. दिस इज एरिया. ये जो मैं शेड कर रहा हूँ दिस इज एरिया. तो एरिया में कुछ वैसा कंसेप्ट नहीं होगा. एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली सर्कल का जितना था उसका आधा हो गया एरिया. एक कंप्लीट सर्कल जितना जगह ले रहा था उसका तो हाफ जगह ही ऑक्यूपाई कर रहा है ना एक सेमी सर्कल. सो इट विल सिंपली बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल. सो अगर हम लोग एरिया का बात करें तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, पाई आर स्क्वायर था उसका सर्कल का, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2. लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. ठीक है, उसका हाफ हो गया. इट इज नॉट पाई आर 2, इट इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल. ओके, तो बस यही ध्यान रखना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वाड्रेंट, मतलब सेमी सर्कल का भी आधा. ठीक है, और अब खुद से तुम लोग सोचना कि ये यही 3 चीज़ तो इसका भी फाइंड करना है ना. एक क्वाड्रेंट के लिए भी तो हम लोग यही 3 चीज़ डिस्कस करेंगे. तो अब खुद से सोचो कि कौन सा क्या होगा. ठीक है, सो क्वाड्रेंट मतलब ऐसा कुछ 1/4 ऑफ अ सर्कल. तो अगर सर्कल का 1/4 है तो सर्कमफेरेंस भी 1/4 हो जाएगा. ये सही से बन नहीं रहा है, तुम लोग फीलिंग को समझो, डायग्राम को नहीं. सो देखो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, या तो तुम बोल सकते हो कि सेमी सर्कल का आधा या फिर सर्कल का 1/4. तो सर्कल का 2 पाई आर था उसका 1/4 करेंगे. ठीक है, सो इट विल बिकम बेसिकली 2 से 2 टाइम्स में कट गया. सो पाई आर बाई 2, दिस इज द सर्कमफेरेंस. ठीक है, ये मत करना कि सीधा सेमी सर्कल का हाफ, एक्चुअली ये मैच कर जाएगा. मतलब बोलेंगे मतलब ये कि आप पेरीमीटर जब फाइंड करना है तो ये मत सोचना कि अच्छा सर्कमफेरेंस तो सेमी सर्कल का हाफ हो गया तो पेरीमीटर भी सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा. नहीं, पेरीमीटर क्या होगा वो देखो. देखो ये रहा सर्कमफेरेंस, मतलब हमको इतना ही लेंथ मिला है. पर अगर हम पेरीमीटर का बात करें तो नॉट ओनली दिस रेड पोर्शन बट
we will also be needing, let me mark it with some other color, say green color. For perimeter we also need this green portion. So perimeter means length of green portion plus red portion, and this green portion is ये भी R और ये वाला भी R, दोनों रेडियस ही है, रेडियस के बराबर ही है. सो अगेन इट विल बी जितना इसका सर्कमफेरेंस आया वो प्लस 2R. You can take R common and you can write it as pi by 2 plus 2 times R. ठीक है, दिस इज द पेरीमीटर. अगेन इफ यू टॉक अबाउट एरिया, एरिया में कोई झोल नहीं. देखो एरिया मतलब ये तो फिर वही बात ना, कितना स्पेस यहाँ का ले रहा है. ठीक है, सो इट विल अगेन भी जितना सर्कल का था पाई आर स्क्वायर, उसको सर्कल को हम लोग या तो 4 से डिवाइड कर दें या सेमी सर्कल को हाफ से डिवाइड कर दें. हाफ से डिवाइड नहीं, हाफ कर दे, 2 से डिवाइड करें, हाफ कर दे. तो सर्कल का 1/4 फाइंड कर लो या फिर सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. दिस इज इट. ठीक है, सो दैट इज ऑल थ्योरी अबाउट सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट एंड विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थ्योरीज ओनली. मतलब यही सब चीज़ें, यही रिलेशन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. ओके, so now having discussed semicircle and quadrant, now we'll discuss something called ring. Okay, and what is ring? Basically ring क्या है, दो concentric circles. concentric मतलब होता है वो जिनका सेंटर सेम हो. मतलब कि सपोज कि एक सर्कल हम बनाए, ठीक है, ये सर्कल नहीं बनाना और बन गया. ओके, इट्स लाइक इलेक्ट्रिकल, थोड़ा चेंज कर लेते हैं. सपोज कि ये सर्कल बना, नहीं बना, ओके लेट मी मेक इट ट्राई अगेन. अब तो बन जा, हाँ अब बन गया. देखो, और ये इसका सेंटर है, तो इसका सर्टेन रेडियस होगा. सपोज लेट दिस रेडियस भी से स्मॉल आर. तो अभी हम लोग एक और सर्कल बना रहे हैं इससे थोड़ा ज़्यादा रेडियस का. ठीक है, और अगर हम सेंटर सेम रखते हैं इन दोनों सर्कल का, देयर रेडियस इज डिफरेंट बट सेंटर इज सेम, तब ऐसे सर्कल्स को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स. व्हाट वी कॉल इट, कंसेंट्रिक सर्कल. ये बना नहीं सही से, लेट मी ट्राई. ओके, सम काइंड ऑफ दिस. एक्चुअली अगर देखोगे इस डायग्राम को सही से तो इस कंसेंट्रिक लग नहीं रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ थोड़ा कम है ये डिस्टेंस. सो ये लग नहीं रहा है, बट कंसेंट्रिक आई होप मीनिंग तुम लोग समझ गए कि जब सेंटर सेम हो, ठीक है, और रेडियस डिफरेंट हो, तो ये बड़े वाले का रेडियस समझ लो कैपिटल आर मानते हैं. सपोज कैपिटल आर इज़ द रेडियस. ठीक है, बड़ा वाला है, बड़ा रेडियस होगा कैपिटल आर. छोटा वाला है, छोटा रेडियस होगा स्मॉल आर. बस हम लोग अपने कन्वेंशन के लिए नाम सब ले रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका एरिया, मेन इसमें जानना होता है हम लोग कि ये एरिया क्या होगा. देखो ये जो एरिया, ठीक है, वी वांट टू नो दिस एरिया. दिस इज द रिंग पोर्शन ना, तो इसका एरिया क्या होगा. तो हम लोग इसको CD की तरह भी बोल सकते हैं. देखो DVD CD जो आता है ना, कुछ ऐसा ही होता है ना देखने में. हाँ, ऐसा ही होता है. तो ये जो एरिया है, शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट. देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, सो अगर बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड किया तो हम लोग को मतलब बेसिकली क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये एरिया मिल जाएगा. मतलब दिस एंटायर एरिया, ये पूरा मिल जाएगा एरिया. ठीक है, अब अगर उसमें से, अगर इस एरिया में से अगर हम ये स्मॉल सर्कल वाले एरिया को हटा दें, ठीक है, ये स्मॉल सर्कल वाले एरिया को ऐसे हटा दें, माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है वही तो बचेगा ना. ठीक है, सो विल बी डूइंग दैट ओनली. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल विच इज़ पाई आर स्क्वायर माइनस area of smaller circle which is again pi r square but this time it is small r. ठीक है, you can take pi common, so it will be r square minus small r square. ठीक है, तो ये याद रखना कि रिंग अगर होगा, रिंग अगर बन रहा होगा कहीं पे, then this is the area of that portion जो रिंग ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है,
अच्छा, एक और बात, समटाइम्स ये इसका जो क्वेश्चन आता है उसमें तुमको दो रेडियस का समेशन दिया हुआ रहेगा, डिफरेंस फाइंड करने बोलेगा, इस तरह का भी आता है. सो फॉर दैट हम लोग बेसिकली इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं. देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना ये. सो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसके एरिया को. सो बोथ विल हैव सेम वैल्यू, देयर वैल्यू विल नॉट बी डिफरेंट. एक ही बात हुआ, बस ध्यान में रखने के लिए. कभी सेकेंड फॉर्म में यूज़ करने को पड़ सकता है, कभी फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करने को पड़ सकता है. ठीक है, कभी ऐसे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा इसको, और समटाइम्स इस तरीके ये वाला ज़रूरत पड़ेगा. So this is how you determine the area of a ring. Now see, when you will face questions related to this ring, तब क्या हो सकता है ना, इन्फॉर्मेशन कैसे भी दिया हुआ हो सकता है. जैसे मान लो बोलेगा कि द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर रिंग इज दिस. सो इट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ दिस स्मॉलर रिंग इज गिवन, मतलब कि हम लोग यहाँ से स्मॉल आर फाइंड कर सकते हैं कि 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू वॉट एवर द वैल्यू इज गिवन, एंड देन यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर. ठीक है, उसी तरीके से कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया हो सकता है इनर वाले सर्कल का एरिया दिया वाले. सो कोई भी एक इन्फॉर्मेशन वैसा दिया रहेगा जिससे तुम रेडियस दोनों फाइंड कर पाओ. ठीक है, सो विल डिस्कस दैट लेटर व्हेन विल सी क्वेश्चंस. अभी के लिए मैंने बता दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. सो दिस इज ऑल थ्योरी अबाउट सर्कल. इससे ज़्यादा और जानने का ज़रूरत है नहीं, आई थिंक सो. कुछ भी अगर रहा तो व्हेन विल डिस्कस क्वेश्चंस तब हम लोग वो देख लेंगे थ्योरेटिकल पार्ट, अगर कुछ बाकी रह गया हो तो. Okay, now we can solve any question related to this topic, and we should go to question section now.